Hello student, JK says J Mr. 90 plus, how are you? I think you are all happy at your home and doing a lot of study online. You are joining of the online studies right now. Today I will take the class 9th SST Political Science, chapter number 1. The name of the chapter is What is Democracy? Why Democracy? The first chapter today we are starting. So let us know what is democracy. The first our mission is to clarify the democratic word, how works it and what is democratic or democracy. So let's learn first of all the meaning of democracy. In book 1.1 there is a question, what is democracy? Democracy, the word democracy comes from a Greek word demokratia. A Greek word demokratia. Demokratia. In Greek, demos means people. In Greek, demos means people and kratia means rules. It means the democracy is the rule of people. Yes, you are absolutely right. All the peoples elected the rulers and then after we will get a democratic government. So in simple manners, as per word meaning, demos means people and kratia means rules. So it is clarified. Okay, thank you. Another very learned person and former President of America, Mr. Abraham Lincoln, also defined the democracy. According to Lincoln, democracy is government of people and democracy is the people. Democracy is people. Democracy is government of people, by the people and for the people. Here we are conclude in three languages, three things. The government of people. The first of all, the meaning, democracy is government of people. Yes. A government of people by the people. It means government which is elected by people. Yes. And for the people. It means for the people means the elected government works for the peoples inhabited in a country. So all the things in this definition are clear. Government of people, government by people and government for people. So all works related to in democracy people oriented government. Okay. In simple words, in simple language, there is the meaning of democracy is the form of government. Democracy is the form of government. Democracy is the form of government in which rulers are elected by people. In which rulers are elected by peoples. इन सिंपल शब्दों में हम बात करें कि तो डेमोक्रेसी वो शासन का एक पद्धति है, एक शासन का एक तरीका है जिसके अंदर जो शासकों का चुनाव है वो वहां की जनता करती है. ये बिल्कुल सिंपल सी बात है. अब विश्व की हम बात करें तो विश्व में दो प्रकार की सरकारें होती है बच्चों. One is democratic government and another is non-democratic government. So you will already you have already understood the things. What is the democracy? Democracy के बारे में आप already समझ चुके हैं.
तो डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, क्या किस प्रकार का ये होता है। डेमोक्रेसी का मतलब वो सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी गई हो, और नॉन डेमोक्रेटिक वो सरकार जो लोगों के द्वारा नहीं चुनी गई हो, जिसके शासक मन मर्जी से बने हो, या अपनी ताकत से बने हो, या सैन्य बल से बने हो, या किसी राज परिवार के द्वारा वो नियत किए गए हों, वही शासक नॉन डेमोक्रेटिक कहलाते हैं। जैसे अपने पुराने भारत की हम बात करें तो वहाँ यहाँ राजा महाराजा का राज होता था, तो राजा का बेटा फिर राजा बनता था, तो वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। इस प्रकार की सरकार को राजशाही या तानाशाही सरकार के तौर पे जाना जाता है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने डेफिनेशन अभी लिंकन साहब ने बताई, या मैंने जैसे सिंपल शब्दों में इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर आपको बताया, तो यहाँ इस डेफिनेशन की कुछ लिमिटेशन है बच्चों। इसके अंदर कुछ चीजें क्लियर नहीं है। क्या चीजें क्लियर नहीं है? एक तो ये चीज क्लियर नहीं है कि हु आर देयर रूलर्स, इसमें शासक होंगे कौन, शासक किसको कहेंगे, शासक की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, शासक की क्या उम्र होनी चाहिए, ये चीज इसके अंदर क्लियर नहीं है। दूसरी चीज है व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट्स ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, किस प्रकार के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होगा, कौन कौन लोग इसके अंदर भाग ले पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, उनका जो चुनाव में भाग ले रहे हैं उनका एज क्राइटेरिया क्या होगा, या कोई एजुकेशन भी उसके लिए निहित है कि नहीं है। सो ऑल दैट क्वेश्चंस इन राइज एंड देयर इज नो क्लैरिफिकेशन इन दिस डेफिनेशन। Who are the people who can elect their rulers or get the elected? इसके अंदर वो लोग भी क्लियर नहीं है जो इसमें भाग लेने वाले हैं या जो चुनाव में खड़े होने वाले हैं, दोनों ही लोग कौन होंगे इसके बारे में कुछ भी बात क्लियर नहीं है। अब आगे और एक लिमिटेशन है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट की लिमिटेशन क्या होगी, उसका काम करने का तौर तरीका क्या होगा, क्या चुनी हुई सरकार अपने मन मर्जी से काम करेगी, क्या चुनी हुई सरकार लोगों को पूछ करके काम करेगी, किस प्रकार से उसका काम होगा, क्या उस सरकार के लिए कोई कानून होगी, क्या कोई न्यायालय होगा जिसके अंदर कोई पीड़ित पक्ष है वो अपनी बात को रख पाएगा, मतलब ये भी बातें इस डेफिनेशन के अंदर क्लियर नहीं है। तो बच्चों ये डेफिनेशन किस प्रकार के लोकतंत्र की बात कर रहा है, ये कुछ अलग लोकतंत्र की बात कर रहा है, उस प्रमुख लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा जिसकी हम बात करने वाले हैं आगे जाकर के। तो इस डेफिनेशन के अनुसार हमें कुछ इस तरह के शासन मिलने की उम्मीद है। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे लाइक पाकिस्तान, म्यांमार एंड सऊदी अरेबिया। हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ का जो सैनिक शासन है वो बहुत ताकतवर होता है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस ताकत का परिचय करवाया था पूरे संसार को। उसने वहाँ की चुनी हुई सरकार जो थी बेनजीर भुट्टो की, उसको हटा दिया और खुद वहाँ का शासक बन गया। म्यांमार की बात करें तो वहाँ जो छोटे स्तर पर चुनाव होते हैं वो तो सब होते हैं, लेकिन उसका शासक जो देश का प्रमुख शासक है वो सैन्य शासक होता है। हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ पर भी इस तरह का जो पार्लियामेंट है वो छोटे मोटे पार्लियामेंट होते हैं। वहाँ का जो मेन डिसीजन है वहाँ का राजा करता है, किंग करता है। तो ये जो इस परिभाषा के अंदर जो कमियां हैं ये हमें इस चीज की ओर इंगित करती है कि केवल छोटे मोटे चुनाव हो जाना या कुछ लोगों का चुनाव हो जाना या फिर जो अंतिम सत्ता है वो चुने हुए व्यक्ति के हाथ में नहीं होना, ये लोकतंत्र की परिभाषा में नहीं आता है, वो लोकतांत्रिक ढांचा नहीं कहलाता है बच्चों। तो आगे मैं आपको इसके बारे में इसकी जो फीचर्स है इसको समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार आप अच्छे से इस परिभाषा को नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है। थैंक यू। तो बच्चों आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझा था कि लोकतांत्रिक सरकार किससे कहते हैं, जो लोगों के द्वारा चुनी हुई होती है उसी को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं।
अब लोकतांत्रिक सरकार को हम बहुत अच्छे से समझने के लिए इसके फीचर्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट की क्या क्या फीचर्स होती है, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या पहचान चिन्ह हैं, जिससे अपन ये कह सकते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक सरकार है। और दूसरे साइड को हम ये डिस्टिंगाइज कर सकें, उसमें भेद कर सकें कि ये लोकतांत्रिक सरकार का लक्षण नहीं है। तो सबसे पहले आइए एक एक करके हम इसकी सारी फीचर्स को समझते हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की क्या विशेषता है, क्या खासियत है। बच्चों सबसे पहले इसका जो पहला पॉइंट है वो है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। मेजर डिसीजन, कोई भी मुख्य देश का कोई भी सर्वोत्तम निर्णय लेने की जहाँ बात आती है तो सर्वोत्तम जो निर्णय है वो किसके द्वारा लिया जाना चाहिए, इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिया जाना चाहिए। जो जिस व्यक्ति को जनता ने चुन करके वहाँ संसद में भेजा है वही उनके लिए निर्णय ले, दूसरा कोई निर्णय नहीं ले। यही एक लोकतंत्र की पहचान है, यही मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। इसके लिए मैंने सिंपल इसकी जो है व्याख्या की है, एक्सप्लेनेशन किया है। इन ए डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ड विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। फाइनल जो डिसीजन लेने की ताकत है, फाइनल जो डिसीजन लेने का पावर है वो किसके पास में होना चाहिए, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास में होना चाहिए, नहीं कि और किसी के पास में होना चाहिए। ये लोकतंत्र की पहली और सबसे प्रमुख विशेषता है। अब आप कहोगे कि ऐसा नहीं हो तो फिर क्या होता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो 1999 के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री कूप हुआ था, लीडिंग बाय मिस्टर परवेज मुशर्रफ। उसने क्या किया, वो सेना का प्रमुख था और सेना का प्रमुख होने के नाते उसके पास में सर्वोच्च सत्ता थी। उसने वहाँ की चुनी हुई सरकार को नस्ते नाबूद कर दिया, हटा दिया और खुद देश का सर्व बन गया। और फिर उसने बाद में अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। जब मीडिया में और सब जगह इसकी आलोचना हुई तो उसने एक ढोंग करते हुए, एक नाटक करते हुए एक जनमत संग्रह करवाया, रेफरेंडम करवाया और रेफरेंडम करवा करके अपने आप को लीगली राष्ट्रपति घोषित करवा लिया। ये 2002 की बात है। और अपना जो कार्यकाल था वो 5 साल और बढ़ा लिया। उसने 5 साल अपना कार्यकाल बढ़ा लिया। 5 साल कार्यकाल बढ़ाने के बाद में उसने क्या किया, संविधान के अंदर बहुत सारे परिवर्तन करने शुरू कर दिए। वहाँ की जो कानून व्यवस्था जिससे रन होती है उस संविधान के अंदर बहुत सारे उसने परिवर्तन करने शुरू कर दिए। उसने क्या किया, चुने हुए जो लोग थे उनकी जो असेंबलियाँ थी उनको भंग करने का कानून पास कर दिया, जिससे वो जिस असेंबली को यदि उसके कोई खिलाफ आवाज़ उठा रहा है और कोई उसकी आलोचना कर रहा है तो उस असेंबली को पूरी को भंग करने का कानून भी पास करवा लिया। और जितनी भी चुनी हुई असेंबलियाँ थी उनके ऊपर मिलिट्री शासन लगा दिया। एक कैबिनेट जो उसकी कैबिनेट थी, जो उसके मंत्री थे, उन मंत्रियों के ऊपर भी सैन्य शासकों का अधिकार लगा दिया। एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का गठन करके तो जितने भी मंत्री थे उनकी जो कामकाज थे उनके ऊपर निगरानी रखने का काम किसने करवा दिया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर, जो कि फौज के अफसर थे। वो चुने हुए लोगों पर निगरानी रखते थे कि वे काम सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उसने चुनाव भी करवाया, छोटी छोटी असेंबलियाँ जो स्टेट असेंबलीज थी, विधानसभाओं का चुनाव करवाया, लेकिन वो विधानसभाएं काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं थी। फाइनल डिसीजन लेने की पावर उनके पास में नहीं थी। फाइनल डिसीजन लेने की पावर किसके पास थी, जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी, जो कि जनता के द्वारा चुना गया बिल्कुल नहीं था। वो कौन था, वो तो सैन्य शासक था। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि जो फाइनल डिसीजन लेने की पावर है, यदि इस तरह का नहीं हो, नीचे से छोटे मोटे आदमियों को आप चुन चुन के वहाँ भेजोगे, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने का पावर उनके पास में नहीं रहेगा, तो वो लोकतांत्रिक ढांचा नहीं कहलाएगा। वो एक तानाशाह के अंदर लोकतंत्र कहलाएगा। जो लोकतंत्र छोटा रहेगा और वो तानाशाह बड़ा रहेगा, ये उसका गला घोंटने जैसी बात है। अगली जो मैं आपको विशेषता बताना चाह रहा हूँ, विशेषता भी है उसके अंदर जो सबसे पहली बात है, डिसीजन लेने की पावर जनता के द्वारा चुने हुए लोगों के पास होना चाहिए। दूसरा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन। फ्री
फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन का मतलब ये होता है बच्चों कि लोग ये कहते हैं हाँ जी चुनाव वाले लोग ही डिसीजन लेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब चुनाव कराते हैं तो बहुत सारी धांधलियाँ कर देते हैं, धन बल का प्रयोग करते हैं, बाहुबल का प्रयोग करते हैं और वो येन केन प्रकरण सत्ता में काबिज हो जाते हैं। सत्ता में काबिज होने के बाद में जनता की वो सुनते नहीं है, एक भी नहीं सुनते हैं और जनता वहाँ बहुत त्रैमाम करती है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी दूसरी व्यवस्था जो विशेषता है वो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। इसको मैंने सिंपल डेफिनेशन में इस तरह से लिखा है, ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस टू लूजिंग। सत्ता में काबिज लोगों को ये डर होना चाहिए हमेशा कि यदि हमने सही ढंग से कार्य नहीं किया तो जनता हमारा तख्ता पलट कर देगी, अगली बार किसी और पार्टी को वोट दे देगी। जनता के पास में चॉइस होनी चाहिए, जनता के पास में फेयर मीन्स के द्वारा अपने वोट देने का ताकत होना चाहिए, ये इसकी सबसे बड़ी दूसरी व्यवस्था है। अब आप बोलोगे कि चुनाव यदि फेयर एंड फ्री नहीं हो तो क्या हो सकता है, मैं आपको इसके लिए कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ बच्चों। हम बात चाइना की करें तो चाइना की एक संसद है जिसका नाम है क्वांगो रेमिन दाइबियाओ दाहुई, ये उसकी संसद का नाम है, वहाँ की जो संसद है उसका नाम है। और इस संसद में हर 5 साल के लिए चुनाव होते हैं। इस संसद के टोटल 3000 मेंबर हैं और 3000 मेंबर सिर्फ एक ही पार्टी के हैं और उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। छोटी छोटी 8-10 पार्टियाँ और हैं, वो 8 पार्टियाँ इसी कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा है, वो इसके अलाइंड है, इसके साथ में रहकर कि वो चुनाव कर सकती है, नहीं तो वो चुनाव नहीं कर सकती। इसी एक पार्टी का पूरी की पूरी संसद पर कब्जा, यही राष्ट्रपति का चुनाव करती है, यही से देश के अंदर पूरा डिसीजन लेती है, सामने से दूसरी पार्टी को कोई डेवलपमेंट नहीं होने देते। तो एकमात्र एक पार्टी है तो वो एक तरह का राजशाही शासन हो गया। ये पार्टी हमेशा जीतती है और कभी भी नहीं हारती, क्योंकि उसके सामने कोई सशक्त पार्टी कभी उभर के आई नहीं। और सबसे बड़ी जो इस पार्टी ने संविधान के अंदर एक संशोधन करके एक बिल पास कर दिया जिसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि चुनाव में खड़ा होना है तो उसको नेशनल कांग्रेस से अनुमति लेनी होगी। कोई भी आदमी यदि खड़ा होना चाहता है तो उसको नेशनल कांग्रेस से अनुमति लेनी होती है और नेशनल कांग्रेस में वही लोग होते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के होते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही लोग यदि उसको किसी को परमिशन देंगे तो वो लोग उनका चुनाव लड़ सकते हैं, अदरवाइज कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। हम बात करें मेक्सिको की, चाइना का नाम है मेक्सिको, एक ऐसा देश है जहाँ उसके राष्ट्रपति का चुनाव हर 6 साल बाद में होता है बच्चों। 1930 के अंदर मेक्सिको आज़ाद हुआ था और तब से लेकर के 2000 तक एक ही पार्टी ने राज किया जिसका नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ये कभी भी नहीं हारती है क्योंकि ये एक ऐसा शासन तंत्र है जो दूसरों को पनपने नहीं देता। चुनाव के अंदर बहुत सारा धन बल बाहुबल का प्रयोग करता है, बहुत सारे लोगों के लिए कंपल्सरी है, टीचर भी इसी पार्टी के लोगों के लिए वोट मांगते हैं। तो बड़ा ये देश का दुर्भाग्य है कि एक ही पार्टी सालों साल काबिज होती है जिससे नए लोगों को मौका नहीं मिलता है और ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। तो कहने का भाव ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हर आदमी को जो सत्ता में काबिज है यदि वो सही ढंग से कार्य नहीं करे तो उसको चुनाव हारने का खतरा यदि उसके पास में नहीं है तो ये मामला लोकतांत्रिक नहीं कहलाता है, इसको हम किसी एंगल से लोकतंत्र नहीं कह सकते। ये बहुत जरूरी है। तीसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो सी के रूप में मैंने लिखा है, वो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। सिंपल सी बात है कि लोकतंत्र के अंदर सब लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अब वोट में क्या है, इसके अंदर मैं आपको कुछ क्लियरिटी कर देता हूँ कि जितने भी लोकतांत्रिक देश है वो एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम के तहत कार्य करता है। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है वयस्क मताधिकार। जो व्यक्ति वयस्क हो चुका है, जैसे अपने भारत की बात करें तो 18 साल का व्यक्ति को वयस्क माना जाता है, उसको वोट देने का अधिकार होता है। अलग अलग कंट्री के अंदर ये अलग अलग हो सकता है। तो 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति
इस चुनाव प्रक्रिया के अंदर अपना वोट देने का अधिकार रखता है और हर व्यक्ति का एक वोट होता है, एक उसकी वैल्यू काउंट करते हैं, उसका मूल्य भी एक ही होना चाहिए, नहीं कि एक व्यक्ति का 2 मूल्य होना चाहिए, नहीं कि एक व्यक्ति का आधा मूल्य होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र की सशक्त बात है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, ये जरूरी है, ये इसकी सबसे बड़ी तीसरी व्यवस्था है, इसकी विशेषता है। मैंने इसको सिंपल भाषा में आपको समझने के तरीके से इसको इस तरह से लिखा, इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। सबको एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर वोट की एक कीमत होनी चाहिए। अब इसके अंदर किस प्रकार से धांधलियां होती है, जो अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है वो किस प्रकार की इस तरह से धांधलियां करती है। हम यदि बात करें सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया में 2015 तक 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया की बात करें तो एस्टोनिया ने क्या किया, वहाँ अल्पसंख्यक जो रशियन लोग थे उनको वोट देने के लिए अधिकृत नहीं किया। बहुत उन लोगों को संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वो अल्पसंख्यक थे, उनकी आवाज़ को सुनते नहीं थे, उनकी आवाज़ को दबा देते थे। तो उन लोगों को बहुत संघर्ष करना, हालांकि वो वहाँ के निवासी थे, मूल रूप से वो रशिया के थे, लेकिन वहाँ जाकर के एस्टोनिया में बस गए थे, फिर भी उनको वोट देने का अधिकार उनको दिया नहीं गया। हम बात करें फिजी की, तो फिजी में क्या है कि इंडियस फिजी एंड इंडियन फिजी नाम के 2 वर्ग बन गए। इंडिया से जो फिजी में गए वो लोग और वहाँ के मूल निवासी। अब फिजी वालों ने क्या सिस्टम किया कि जो फिजी वाले ओरिजिनल लोग हैं उनको तो 1 वोट 1 वैल्यू काउंट कर लिया, लेकिन इंडियन लोगों के साथ में ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो वोट है वो फिजियंस लोगों की तुलना में उनकी वैल्यू कम है, उसका मूल्य नहीं बराबर नहीं हो सकता। आप 2 वोट डालोगे तो हम 1 ही काउंट करेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है हमारे संसार के अंदर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है उसके अंदर, लेकिन वो असली लोकतंत्र नहीं कहलाता है। असली लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो ये है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ये जब तक हम नहीं कामयाब करते हैं तब तक हम किसी भी सरकार को हम लोकतांत्रिक गवर्नमेंट नहीं कहते हैं। अब बात करें हम चौथी विशेषता की, तो चौथी विशेषता ये कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल फॉर लॉ, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। तो इसके अंदर ये बात है कि कानून का शासन होना चाहिए, संविधान के द्वारा निर्मित कानूनों का शासन होना चाहिए। संविधान का जो निर्माण है वो हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा होना चाहिए। और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ह्यूमन राइट्स, जो मानव मात्र के जो अधिकार है, जैसे सोचना, बोलना, विरोध प्रकट करना, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह में जाने आने के लिए स्वतंत्र होना, कहीं पर भी अपना जहाँ मन करे वहाँ अपना निवास स्थान बना करके रहना, अपनी जॉब जो भी आदमी सोचता है कि भाई मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, नेता बनूंगा, खिलाड़ी बनूंगा, कुछ भी अपने जो मन में आता है वो जॉब चूज करने की स्वतंत्रता होना, जो उस व्यक्ति की सोच है या जिस हिसाब से उसका वो जिस कल्चर में रहता है उस कल्चर का संरक्षण करने का उसका जो पावर है वो हमारा राइट से, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो हमारे को मिलना चाहिए। जिस धर्म और हम आध्यात्म की बात करें तो हम जिस पंथ को मानना चाहते हैं उस पंथ को मानने की हमें पूरी तरह से आज़ादी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर आती है, राइट्स के अंदर आती है। तो पहली बात है कि कानून का शासन होना चाहिए, दूसरा हमारे अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। ये इसकी सबसे लास्ट और चौथी सबसे सशक्त परिभाषा है। मैंने इसको सरल तरीके से आपको इस तरह से समझाने का प्रयास किया है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स शेप्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। गवर्नमेंट का जो भी तरीका है उसकी जो सीमाएं हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के द्वारा बंधी हुई होनी चाहिए। संविधान के द्वारा निर्मित कानूनों के द्वारा उनकी सीमाओं को अंकित किया जाना चाहिए, उनके लक्ष्य रेखा को अंकित किया जाना चाहिए। और ऐसी सरकार हो जो हर सिटीजन के राइट्स की रक्षा करती हो, उसके अधिकारों का हनन ना करती हो। यदि इसकी हम इसमें अपन विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो कानून के अनुसार तो शासन करते हैं लेकिन दूसरी चीज़ का पालन नहीं करते हैं, वो है ह्यूमन राइट्स।
मानव अधिकार जो है वो उसका पालन नहीं करते हैं। बात करें हम जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे 1980 के अंदर 1980 के अंदर इंडिपेंडेंट हो गया था और उस इंडिपेंडेंस, उस स्वतंत्रता की लड़ाई एक ही पार्टी ने लड़ी थी जिसका नाम है ज़ानू पीएफ, ZANUPF, ज़ानू पीएफ। ज़ानू पीएफ नाम की एक पार्टी थी, ज़ानू पीएफ, ZANUPF। इस पार्टी ने चुनाव लड़ा था स्वतंत्र होने के बाद में और वो 2017 तक एक उसका जो लीडर था उसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे ने इस पार्टी का निर्माण किया और इसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के बाद में रॉबर्ट मुगाबे को उसका राष्ट्रपति चूज किया गया, जो कि फिर बाद में हटा ही नहीं। उसने इतने अनफेयर मीन्स को यूज़ किया, पब्लिक ओपिनियन को दबा दिया, ह्यूमन राइट्स को दबा दिया, प्रेस को दबा दिया, न्यायपालिका तक उसने नहीं छोड़ा, जजों पर प्रेशर डाल करके उसके निर्णयों को बदला दिया, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। और 2017 तक उसने रेगुलर राज किया। फिर बाद में जनता ने तंग आकर के उसको वहाँ से हटाया। उसने जो, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर विपक्षी पार्टियाँ नहीं थी, विपक्षी पार्टियाँ होने के बावजूद भी वहाँ पे विपक्षी पार्टी होने के बावजूद भी वहाँ पे जो सिस्टम था उनकी आवाज़ को दबा देते थे, आवाज़ को उठने नहीं देते थे और ये काम रेगुलरली वो करते रहते थे। बहुत सारे इस तरह का उन्होंने हथकंडे अपनाए। अपने चुनाव में जो कैंडिडेट खड़े करते थे उनके ऊपर बहुत सारा वो पैसा खर्च करते थे और पैसा खर्च करके वो अपने कैंडिडेट्स को जीता देते थे। तो इस प्रकार से ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, इसके अंदर यदि कानून का शासन नहीं हो और नागरिकों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं हो तो वो सरकार कभी भी लोकतांत्रिक सरकार के तौर पे नहीं गिनी जाएगी। वो एक चुनी हुई अत्याचारी सरकार या तानाशाही सरकार के तौर पे काउंट करी जाएगी। तो हम शॉर्ट के अंदर इसकी बात को यदि हम समराइज करें तो वो समराइज इस तरह से है कि भाई इसके अंदर जो मेन 4 पॉइंट है वो ये है। पहले तो रूलर्स जो है वो जनता के द्वारा चुने जाने चाहिए, सारे मेजर डिसीजन उन्हीं के द्वारा होने चाहिए, फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हर आदमी को चुनाव में भाग लेने की, चुनाव जीतने की, चुनाव में खड़े होने की। और वर्तमान नेता यदि से ढंग से कार्य नहीं करते तो उनको हटा देने की, ये सबके पास में चॉइस होना चाहिए। हर आदमी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। एक 1 वोट 1 वैल्यू का जो सिद्धांत है वो इस पर कार्य करता है। हर आदमी को अपना इक्वलेंट, कानून की नज़र में सब आदमी बराबर होने चाहिए, संविधान की नज़र में सब आदमी बराबर होने चाहिए। वो चाहे वो किसी जाति, धर्म या संप्रदाय से क्यों नहीं हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, सबको बराबर का हक कानून के द्वारा मिलना चाहिए। ये इसकी सबसे फॉरमोस्ट जो है वो बात है। और चौथी हम सबसे जो महत्वपूर्ण बात हम करना चाहिए तो वो ये है इसकी समरी का कि जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अनुसार चलनी चाहिए। कानूनों के द्वारा उस सरकार पर नियंत्रण होना चाहिए। कानूनों की रक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए जिस पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं हो। स्वतंत्र प्रेस होना चाहिए, मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए ताकि सरकार की गलत नीतियों को जनता तक लेकर के आए और जनता को समझाएं कि ये सरकार ठीक से कार्य नहीं करे, तो नेक्स्ट टाइम में जब वोट हो तो उस सरकार को जनता हटा सके। प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर सिटीजन को उसके नागरिक अधिकारों का रक्षा करने का अधिकार होना चाहिए। उसको बोलने, चलने, फिरने, जॉब चूज करने, काम करने, धर्म और अपनी विचारधाराओं को व्यक्त करने का पूरी तरह से अधिकार होना चाहिए। ये 4 विशेषताएं लोकतंत्र की प्रमुख होती है। यदि इन 4 विशेषताओं में कोई भी विशेषता किसी भी देश में नहीं है तो उस सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार कतई नहीं कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, इसकी फीचर्स को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आप इस पूरी चीज को अपने नोटबुक में अच्छे से लिखिए, बुक को 3-4 बार पढ़िए। 3-4 बार आप जब तक नहीं पढ़ोगे ये बुक आपको समझ में आने वाली नहीं है। काफी लंबी चीजें हैं, मैंने आपको बहुत शॉर्ट संक्षिप्त करके और बहुत ही सरल भाषा के अंदर इसको समझाने का प्रयास किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।